Hello class, good morning to all, and we are discussing the same chapter, alcohol and phenol, and today we have the last topic of this chapter, that means the chemical properties of ether. Clear? And the rest thing I discussed with you already. Clear? So today you have the topic chemical properties of ethers. Is it okay? So topic is that chemical properties of ether. Understood? So see here, the last time I also discussed with you the physical properties of ether, and second things, see here about the ethers. So remember that the ethers are very less reactive. Clear? These are the very, you can say, less reactive and very quite inert compounds. Clear? That means the ethers, you can see that these are the very quite inert and very less reactive. Very less reactive. Clear? And before this topic of ether, we have discussed the topic phenols and the phenols and the alcohol. So alcohol, you can see the alcohol, that means the OH and the phenol are high reactive as compared to ether. High reactive as to ether. ठीक है, यानी कि जो आपके फिनॉल्स थे, जो आपके अल्कोहल्स थे, वो काफी रिएक्टिव थे एज कंपेयर टू ईथर्स. ठीक है, व्हाई इट्स हैपनिंग. ठीक है, सो दिस इज द सिंपली बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ दिस ROR. ठीक है, या सिंपली कैन से दिस इज कॉल्ड द ईथर ग्रुप. ठीक है, एंड रिमेंबर दैट दिस ईथर इज डज नॉट रिएक्ट विद एनी फंक्शन ग्रुप. ठीक है, या इट विल नॉट रिएक्ट विद यू कैन सी द रिड्यूसिंग एजेंट, द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, the minerals acid. Clear? So it will not react with this type of conditions. Clear? And it only react in very drastic condition, that means very high condition, you can say that extraordinary conditions. Clear? And that means the simple जो आपके पास conditions होंगे वहां पे ये जो ethers होगा वो react नहीं करेगा. ठीक है, so reason क्या होगा इसका? Reason is only that the presence of this type of functional group. Clear? And you are saying that there is a no active sites around this O. ठीक है, so you can see that there is no active sites. No active sites is present in ether. ठीक है, आपने क्या बोला इसको ROR बोल दिया. ठीक है, आपने क्या पढ़ा? ROR पढ़ दिया. ठीक है, आपने कहा भैया ये क्या होता है? कीटोन आपके, सॉरी ये आपके पास ईथर होता है. दिस कॉल्ड द ईथर. ठीक है, अब ईथर्स को देखिए, देयर इज नो एक्टिव साइट्स. ठीक है, बट यहां देखिए अल्कोहल में देयर इज वन एक्टिव साइट्स. ठीक है, सो दैट्स व्हाई दीज ईथर्स आर क्वाइट रिएक्टिव. ठीक है, क्वाइट रिएक्टिव होते हैं एज वेल एज दीज आर द क्वाइट इनर्ट कंपाउंड्स. ठीक है, बात समझ गए? तो इनके रिएक्शंस बहुत ज्यादा बात नहीं करने वाले बिकॉज इट्स वेरी लेस रिएक्टिव. ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात कर लेते हैं, आगे बढ़ जाते हैं विद द फर्स्ट केमिकल प्रॉपर्टीज. ठीक है, द फर्स्ट केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ईथर इज कॉल्ड द रिएक्शन या क्लीविंग ऑफ इथरिकल ऑक्सीजन. ठीक है, सो फर्स्ट काइंड ऑफ रिएक्शन यू हैव अ रिएक्शन ऑफ इथरियल ऑक्सीजन. ठीक है, इथरियल ऑक्सीजन, वी ऑल नो दैट द O is present in the ether is called इथरिकल ऑक्सीजन. ठीक है, so first of all see here, whenever any ether, that means in this manner, you can say here the CH3, CH2O, CH2, CH3 is reacting with oxygen, that means having the air, so it will give you oxidation. ठीक है, ऑक्सीडेशन देगा, यू कैन से आपको देगा पेरोक्साइड लिंकेज देगा. ठीक है, आपका एडिशन ऑफ O हो जाएगा, तो यू कैन से दैट इट्स आल्सो कॉल्ड द ऑक्सीडेशन. ठीक है, O का एडिशन कर रहे हैं आप लोग. ठीक है, तो क्या बन जाएगा यहाँ पे? द चेन विल रिमेन द सेम. ठीक है, चेन विल रिमेन द सेम, दैट मीन द CH3 है CHO, CH2, CH3 and OCH3 will attack here. OCH3 will attach here. ठीक है, so it will give you the hydroperoxide.
ठीक है. सो दिस काइंड ऑफ कंपाउंड इज कॉल्ड द हाइड्रो peroxide is there. Clear? It's called हाइड्रो peroxide. ठीक है. सो नेम आपको लिखना है. आपने क्या किया सिंपल कि जो आपका O था, ठीक है, जो आपका इथिकल O था वो क्लीव हो रहा. देखिए यहाँ पे जो S था वो क्लीव हो गया एंड द वन O is attached with this the next carbon of this इथिकल ऑक्सीजन. ठीक है. जो इथिकल ऑक्सीजन का जो नेक्स्ट कार्बन होगा वहां पे आपका अटैच हो जाएगा दिस O. ठीक है. So name you can see that this is called ethoxyethyl hydroperoxide. Hydroperoxide is the name of this compound. Ethoxyethyl hydroperoxide is there. ठीक है. तो ये कंपाउंड मिलेगा आपको सिंपली यहाँ पर CH3 CH2O CH2 CH3 आप कंबाइन कर रहे हैं विद द एयर. आपका जो एयर होगा एटमोस्फेरिक. ठीक है. तो यहाँ पर मिल जाएगा आपके पास दिस काइंड ऑफ compound. Clear? So please note down this point. So this point is clear. And second reaction, yeah, second kind of reaction you can note down here. The reaction is called the cleaving of the CO bond. ठीक है. यह reaction contain reaction of cleavage of CO bond. CO bond. ठीक है. तो आपने क्या बोला कि जो ईथर का CO बॉन्ड होगा आप उसको ब्रेक करने जा रहे हैं. यू आर ब्रेकिंग द CO बॉन्ड प्रेजेंट इन द ईथर. ठीक है. एंड रिमेंबर दैट यू आल्सो टोल्ड दैट यू आल्सो नो दैट इन द ईथर इट्स वेरी डिफिकल्ट टू ब्रेक द CO बॉन्ड जस्ट बिकॉज ऑफ इट्स वेरी इनर्ट. ठीक है. इनर्ट कंपाउंड आपके पास है, काफी स्टेबल कंपाउंड है, तो इतनी जल्दी रिएक्शन नहीं देगा. तो इट विल गिव द रिएक्शन या इट विल क्लीव by in the drastic condition. So you can change in the temperature. ठीक है. And temperature is fixed here is giving the 373 Kelvin temperature. ठीक है. तो बात करते हैं. फर्स्ट बात करेंगे हम लोग रिएक्शन विद हेलो एसिड. रिएक्शन विद हेलो एसिड या रिएक्शन विद हेलो एसिड्स. हेलो एसिड्स या हेलोजन एसिड्स you have, so it's called the HX. Clear? So you are the reaction of this manner. So you can say here, suppose you have the any kind of you can say the ether here. The first of all we'll talk about the symmetrical ether के बारे में बात करेंगे. ठीक है. फिर बताएंगे आपको unsymmetrical ethers कैसे आपका क्लीव करते हैं, कैसे आपका ब्रेक हो जाते हैं. ठीक है. In the presence of this halo acids. So first of all see here you have suppose the CH3 O CH2 CH3. ठीक है. Plus suppose you have the HX, that means here we can will only use here the HI or HBr. ठीक है. तो हम दो चीज यूज करेंगे यहाँ पे, या तो आप HI यूज कर लेंगे या आप HBr यूज कर लेंगे. ठीक है. आप इन दो की बात करेंगे यहाँ पे, HI और HBr की बात करेंगे. तो सपोज आई एम टेकिंग हियर द HI at the temperature of 373 Kelvin temperature here. So you will see here there is a one halide ion or one you have this. So this ये जो halide ion आपके पास होगा it only attack to that carbon which having the lesser number of alkyl group. क्लियर. यानी वहां पर जाके अटैक करेगा जहां पर आपके पास क्या होंगे, लेसर नंबर ऑफ क्या होंगे यहाँ पे alkyl group present होंगे. ठीक है. बट there is symmetrical, so you can attack this H and I any one side. ठीक है. So the first compound you have the CH3 CH2OH plus you have the CH3 CH2I. Clear? So it will forming here the alcohol and alkyl halide is forming. ठीक है. That means the one compound is the alcohol and one compound is alkyl halide is there. ठीक है. तो सिंपल सी बात आपने क्या करिए कि जब भी आपके पास कोई हेलो एसिड्स होगा एंड ईथर होगा तो आपका जो हेलो एसिड्स का जो आपके पास हैलाइड होगा, हैलाइड आयन आपके पास उस कार्बन को अटैक करेगा विच हैविंग द लेसर नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप. ठीक है. वहां चले जाएगा और अल्कोहल बन जाएगा आपके पास विद दिस मेन ब्रांच. ठीक है. सपोज यू आर टेकिंग दिस HI इन अ वेरी एक्सेस मैनर. ठीक है. HI को आप वेरी एक्सेस मैनर में यूज कर रहे हैं तो आप यहाँ पर जो देख रहे हैं कि CH3 CH2OH है ये अगेन रिएक्ट कर जाएगा विद दिस हेलो एसिड्स to forming alkyl halide plus water. So you can see here, suppose you have this kinds of
alcohol, या suppose you have this ROH plus again you have HX, ठीक है। आप कब बात करें जब आपके एक्सेस में था, ठीक है, एक्सेस में था, तो इट विल गिव यू द RX प्लस वाटर, ये आपको दे देगा RX प्लस वाटर आपको दे देगा, तो ये हो जाएगा आपके पास द रिएक्शन, ठीक, ये क्या हो जाएगा आपके पास, रिएक्शन हो जाएगा, ठीक हो गया। तो यहां देख लेते हैं, ये एक्सेस बन रहा था आपके पास, ठीक है, तो हियर इज द CH3 CH2OH प्लस अगेन यू आर टेकिंग द HI, ठीक है, ये रिएक्शन तब है जब आप एक्सेस में यूज कर रहे हैं, तो क्या बन जाएगा CH3 CH2I I प्लस बन जाएगा देयर इज अ वाटर, ठीक है। सो दिस इज द रिएक्शन, द क्लीविंग ऑफ CO बॉन्ड, दैट मीन द रिएक्शन ऑफ हेलो एसिड्स इज देयर, ठीक है। तो आपने क्या किया, सिंपली आपने कोई ईथर लिया, ईथर प्लस HI कर दिया, HI इज हेलो एसिड्स, ठीक है, और इन दिस केस वी आर ओनली टेकिंग हियर द HI और HBr, ठीक है। आप केवल दो ही हेलो एसिड्स का यूज करेंगे, तो HBr कर दीजिए या आप HI कर लीजिए, ठीक है। सपोज HI लिया आपने एट अ टेम्परेचर ऑफ 373 केल्विन टेम्परेचर, एंड इट्स वेरी इंटरेस्टिंग दैट इन ऑल द रिएक्शन ऑफ ईथर देयर इज ओनली वन टेम्परेचर इज यूज्ड इन योर NCERT, इन योर बुक्स is 373 Kelvin, ठीक है। So it's not very difficult to remember this temperature, but it should be here because the reaction is in very drastic condition, clear? So it will give you the alcohol and alkyl halide, clear? And we know that when you use the very excess halo acids, so this alcohol is again converted into this alkyl halide, ठीक है। तो suppose alcohol आपके पास था, excess HX you are using here, तो इट विल अगेन टर्न इनटू द RX, दैट मीन अल्काइल हैलाइड, जो आपको फिर से दे देगा दिस ओवरऑल रिएक्शन, ठीक है। सो प्लीज नोट डाउन दिस रिएक्शन हियर, ये तो ये था आपके पास बच्चे, दिस इज ऑल अबाउट योर सिमेट्रिकल ईथर्स, ठीक है। जब अनसिमेट्रिकल होगा उनकी बात हम लोग करेंगे थोड़ी देर में, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल नोट डाउन द सेकंड रिएक्शन, सपोज यू हैव द साइक्लिक ईथर, ठीक है, सपोज यू हैव अ साइक्लिक ईथर, and in cyclic ether you have a very interesting reagent called the THF, ठीक है। THF हम लोग जानते हैं क्या होता है, टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन you have, ठीक है, इसको THF, ठीक है, काफी यूज किया आप लोगों ने इन द प्रीवियस चैप्टर, अल्कोहल में यूज किया आप लोगों ने, ठीक है। सो हियर द क्लीविंग ऑफ cyclic ethers, in this section I am taking here the simple compound is called the THF, ठीक है, it's tetrahydrofuran, that means THF, ठीक है। काफी मोस्ट पॉपुलर रिएजेंट आपके पास था इन द प्रीवियस टॉपिक्स, ठीक है, THF, एंड अगेन you are reacting with this THF with HI at the same temperature 373 Kelvin, ठीक है। So remember here, whenever the cyclic ethers goes under with this HX, that means the HI or HBr, ठीक है, only react with HI, ठीक है। आप HX का रिएक्शन करा रहे हैं, तो HX is only HI and HBr is here, ठीक है। इनके अलावा हम लोग कोई दूसरा हेलो एसिड्स यूज नहीं करेंगे, दैट मीन हम लोग एक्सेल यूज नहीं करेंगे यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे HF यूज नहीं करेंगे हम लोग, ठीक है। केवल दो यूज करेंगे, आप HI और HBr का यूज करेंगे, ठीक है। तो दिस टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन जैसे ही आप रिएक्ट करते हैं विद दिस HI और HBr, तो इट विल डायरेक्टली कन्वर्ट इनटू डाइहाइड्रो या डाइहेलो एल्केन के अंदर, ठीक है। चेंज किसमें कर देगा, डाइहेलो एल्केन में चेंज कर देगा, ठीक है। तो हियर यू आर सेइंग दैट 4 कार्बन, तो 4 कार्बन आपके पास है, तो इट विल अरेंज इन दिस मैनर द CH2 एंड द CH2, ठीक है। तो आपको डाइहेलो बनाना है, डाइहेलो दैट मीन दिस इज यू हैव द 1 I एंड हियर इज 1 I, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 1,4 डाइआइडो ब्यूटेन इज देयर, ठीक है। तो नेम क्या हो जाएगा 1,4 डाइआइडो ब्यूटेन, ठीक है। So this is the compound, yeah, you can say simply whenever the cyclic ether is react with the halo acids, that means the only with HX, only with this HI or HBr, so it will give you dihalo acids, ठीक है। That means यहां देखा आपने THF plus HI, तो it will give you 1,4 diiodobutane, ठीक है। After that we'll discuss here the simple reaction, that means
So class, now see here, you have the second things after the cleaving of THF, that means tetrahydrofuran. You have the second things, that means the cleavage of unsymmetrical ether. Unsymmetrical ethers. So see here, whenever you break the symmetrical ether, you have to see that you have the two things. The one is the alcohol and second is the alkyl halide. Clear? So same thing is happening here. Whenever the unsymmetrical ethers is breaking down, so it will again give you the alcohol and the alkyl halide. But remember that you have the two things. One is having the higher number of alkyl group and one is having the smaller number of alkyl groups. Okay? Suppose you have ether in this manner, CH3O, CH2, CH3, and again it's cleaving with the HX, that means the HI in the presence of 373 Kelvin temperature, so it will give you the alcohol and the alkyl halide. Okay? So the main thing is that which one alkyl group it give the alkyl halide and which one will give you alcohol. So remember that द स्मॉलर अल्कोहल जो होगा वो हमेशा आपको देगा दिस हैलाइड आयन. ठीक है. सो जो हैलाइड आयन होगा वो हमेशा आपका अटैक करेगा विद दिस स्मॉलर ग्रुप इन दिस मैनर. You have the halide ion or you have the small number of alkyl groups. So remember here, this one is the smaller or this one is the higher. ठीक है. तो जो आपका हैलाइड आयन होगा, हैलाइड आयन हमेशा आपको अटैक करेगा टू दिस स्मॉलर अल्काइल ग्रुप. ठीक है. सो क्या बन जाएगा, फर्स्ट ऑफ ऑल CH3I प्लस बन जाएगा CH3CH2OH. दैट मींस CH3CH2OH. क्लियर. सो बट ओनली वन चेंज इज हियर. द चेंज इज दैट कि जो हैलाइड आयंस होगा वो अटैक करेगा स्मॉलर वन को और जो H होगा वो अटैक करेगा विद दिस हायर अल्काइल ग्रुप के पास. ठीक है. Second thing is that suppose you have the secondary and the primary. ठीक है. This one is the primary and suppose you have the secondary ethers, तो same condition will be follow. ठीक है. But tertiary के अंदर condition कुछ और हो जाएगा. क्यों ऐसा होता है? देखिए suppose you have in this manner CH3O CH CH3 CH3. So it's about the secondary ether. Secondary ether is again react with the HI in the presence of 373 Kelvin temperature. So again the same tendency, same condition is follow here. So it will form CH3I plus this form OH CH CH3 and the CH3. ठीक है. So this one is called haloalkanes, यानी कि alkyl halide plus alcohol is forming here. ठीक है. But difference is that about the 1 degree and second degree. यहाँ देख लीजिए, this one 1 degree and this one second degree. Suppose you have the tertiary ether. Tertiary ether आपके पास होगा, suppose you have CH3 suppose you have. So in this case, when this HI is react with this one, so it will form third degree halide ion CH3 and the CH3 with this I plus CH3OH plus CH3OH. This one is the major difference in between the primary, secondary और tertiary ethers. ठीक है. tertiary unsymmetrical ether. ठीक है. तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जो आपके पास tertiary ethers है वो अगर HI से रिएक्ट करेगा तो it will form the tertiary alkyl halide plus alcohol. ठीक है. बट यहाँ पर देखा आपने 1 डिग्री सेकंड डिग्री के अंदर it forming या I react with the smaller one and जो bigger one होगा उसके साथ जुड़ जाएगा आपका OH. ठीक है. सो यहाँ पे क्या होता है, जो आपका 1 डिग्री और 2 डिग्री जो ethers होते हैं they undergo SN2 mechanism. ठीक है. SN2 mechanism जो आता है तो it will give you this kind of product. बट जो टर्सरी होगा वो आपके पास जाएगा द SN1 मैकेनिज्म के अंदर. ठीक है. SN1 मैकेनिज्म के अंदर जाएगा तो ऑब्वियसली वी नो दैट टर्सरी जो कार्बोकैटायन होगा इट विल गिव
the stable product. So this one is a very stable and this one will give you the major product here. ठीक है, बात समझ गए. दिस वन इज द मेजर और दिस वन इज द माइनर, यानी कि ये आपके पास जाएगा आई इन दिस फॉर्म. ठीक, क्यों? तो टर्सरी जो आपके पास कैटायन होगा इट विल गिव यू द स्ट्रॉन्गर compound, you can say very stable compound. This is all about the cleavage of unsymmetrical ethers. ठीक है. And after this unsymmetrical ether, you have the topic that the cleaving of the phenolic ether. ठीक है. Cleaving of phenolic ether. Phenolic ether, we all know that you have the aryl phenyl ether. So see the second, that means the aryl alkyl ether you have. So the cleaving of this kind of, yeah, you can say the simply you have the phenolic ether. And the condition is that you again the treating with this phenolic ether with this HI with the same temperature. Clear? So it will give you the different kind of product as compared to this cleaving of the symmetrical ether and cleaving of unsymmetrical ether. Clear? So you have this one, the cleaving of phenolic ether. Phenolic ether you have. Phenolic ether, we all know that you have the alkyl, aryl ethers. Suppose you have the first compound of this, definitely anisole, OCS3, plus you are treating with this one with the HI, having same temperature 373 Kelvin. Okay, so here it will give you the phenol and the alkyl halide. Okay? The compound is that phenol OH plus you have CS3I. Remember that it will not give you the alcohol. Okay, alcohol formation is not possible here. Alcohol does not form here. ठीक है, अल्कोहल नहीं बनेगा, क्या बन जाएगा? फिनॉल बन जाएगा. ठीक है, बाकी रिएक्शन जो देखी थी आप लोगों ने उन रिएक्शन में देखा आपने कि हमेशा आपका द फॉर्मिंग ऑफ अल्कोहल एंड अल्काइल हैलाइड का फॉर्मेशन चल रहा था. ठीक है, टू थिंग्स आर फॉर्मिंग हेयर. ठीक है, बट हेयर अल्कोहल फॉर्म ना होकर क्या बन जाएगा? फिनॉल बन जाएगा और सेकेंड बन जाएगा आपका एल्काइल हैलाइड आपको दे देगा. ठीक हो गया. तो ये था आपके पास द क्लीविंग ऑफ फिनोलिक ईथर व्हेन यू हैव द एल्काइल एराइल ईथर्स यू हैव. ठीक है, द सिंपल थिंग इज देयर, द OCS3 इज कॉल्ड द एनिसोल प्लस HI यू हैव, तो इट विल गिव द फिनॉल प्लस CS3I. ठीक है, सो क्यों ऐसा हो रहा है? व्हाई दिस हैपनिंग हियर? तो सी हियर you have this kind of you can say phenol. Yeah, you have the C6H5 here, plus you have the O plus, and one H is will attack here, and it will give you CS3. So remember here, जो आपका OCS3 bond था, OCS3 bond is very weaker. Bond is weaker. Bond is weaker as to C6H5O bond. ठीक है, यानी कि ये जो आपके पास प्रोटोनेटेड आपके पास मिल रहा है, ठीक है, अल्कोहल जो मिल रहा है प्रोटोनेटेड आपके पास, ठीक है, या प्रोटोनेटेड जो आपके पास सब्सटेंस मिल रहा है, तो इसमें जो होगा, जो OCS3 होगा वो काफी वीकर होगा एज कम्पेयर टू C6H5O बॉन्ड. ठीक है, सो इट विल ब्रेक फ्रॉम हियर, सो इट विल गिव यू द CS3I एंड इट विल गिव यू द अल्कोहल, दैट मीन OH. ठीक है, दैट मीन CS3 टूट जाएगा यहाँ से, ठीक है, प्लस बन के, तो यहाँ से अटैक कर जाएगा I नेगेटिव, इट विल गिव यू CS3I, और यहाँ पे इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन अपने आप ट्रांसफर हो जाएंगे टुवर्ड्स द O या टुवर्ड्स द O प्लस, सो इट विल गिव यू C6H5OH, that means phenol and alkyl halide. So this one is the cleaving of phenolic ether. Clear? So after the phenolic ether, you will have the topic, the cleaving of aryl. Yeah, you can say that simply you have benzyl aryl ether. Okay, topic is that the cleaving of cleavage of benzyl aryl ether. ठीक है, benzyl aryl ethers क्या हो जाएगा? सपोज द सिंपल थिंग्स यू हैव इन दिस मैनर, you have CS2 OCS3, so this is called the benzyl aryl ether. ठीक है, और इससे पहले जो देखा था आप लोगों ने, एक रिएक्शन देखा था OCS3 इज कॉल्ड द फिनाइल एल्काइल ईथर. ठीक है, यानी कि अराइल फिनाइल या अराइल एल्काइल ईथर. ठीक है, यानी कि जो आपका डायरेक्टली O अटैच था विद दिस बेंजीन रिंग,
ठीक है, तो उसको बोला कि आपने एराइल बोल दिया। और बेंजाइल में क्या होगा आपके पास, CS2 जो O है आपके पास, दिस वन इज कॉल्ड द बेंजाइल, ठीक है। CS2 जो ग्रुप लगा होता है दिस वन इज कॉल्ड द बेंजाइल ग्रुप, ठीक है। और अटैच किया होगा OCH3, सो दिस इज कॉल्ड द बेंजाइल एराइल ईथर यू हैव, ठीक है। चलिए, इन दिस टॉपिक सिंपली यू हैव द वन फिनोमिना, ठीक है। दिस वन इज एल्काइल और एल्काइल, एल्काइल, ठीक है। बेंजाइल एल्काइल ईथर, बेंजाइल, ठीक है, एल्काइल ईथर मिल रहा है आपको, ठीक है। प्लस यू आर हैविंग द HI, ठीक है। सो दिस रिएक्शन इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम द रिएक्शन ऑफ प्रीवियस वन। प्रीवियस वन रिएक्शन देखा था आप लोगों ने, तो पहले प्रीवियस रिएक्शन सीख लीजिएगा। प्रीवियस रिएक्शन देखा था ये आप लोगों ने, यहाँ आपने कहा था आपके पास क्या है, OCH3 था आपके पास, OCH3 था प्लस HI आपने किया था, तो आपको क्या मिला था, फिनॉल, यू विल हैव द फिनॉल प्लस CH3, ठीक है। रीजन क्या दिया था आप लोगों ने इसमें, रीजन दिया था कि जो आपके पास OCH3 बॉन्ड होता है वो काफी वीकर होता है एज कंपेयर टू O6H5, O6H5 बॉन्ड काफी वीकर होता है, तो इट विल डायरेक्टली गिव यू द फिनॉल एंड द दिस वन इज एल्काइल हैलाइड, ठीक है। बट यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पे दिस वन इज द +1 और दिस वन इज द नेगेटिव, ठीक है। और ये जो O है आपके पास है, जो लोन पेयर है, हमने पहले भी कहा था लोन पेयर विल अटैक टुवर्ड्स द प्लस चार्ज, ठीक है। इसका जो अट्रैक्शन होता है टुवर्ड्स कहाँ हो जाएगा, प्लस चार्ज हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा क्या, प्रोटोनेटेड बन जाएगा, ठीक है। दैट मीन द O is a CS2, O, one lone pair is here, one lone pair is here having a plus charge and one H is here, or this one is a CS3, this one is the CS3, ठीक हो जाएगा। दिस वन इज a CS3, तो ये बन जाएगा क्या, प्रोटोनेटेड, ठीक है। तो यहां ध्यान से देखिए कि दिस वन इज हैविंग द सिंपल द स्लो स्टेप, द क्लीविंग ऑफ जो CO हो जाएगा वो क्या देगा आपको, वो काफी सिंपल स्टेप मिल जाएगा आप लोगों के पास, ठीक है। तो यहां से ये टोटली क्या कर जाएगा, ब्रेक कर जाएगा, इट विल टोटली ब्रेक डाउन, ठीक है। इट विल टोटली ब्रेक डाउन, सो इट विल गिव यू इन दिस मैनर CS2 प्लस CS3 OH it form, CS3 OH it will form here, ठीक है। तो बन गया आपके पास CS3 OH निकल गया आपका साइड प्रोडक्ट, और ये बना आपके पास CS2 प्लस, ठीक है। अब ये जो आपके पास होगा द CS2 प्लस जो आपके पास है, ये क्या करेगा, इट विल अटैक विद द I नेगेटिव, इट विल अटैक विद द I नेगेटिव टू बी फॉर्म हियर CS2I, ठीक है। तो क्या मिल जाएगा आपको यहाँ पे, CS2I मिल जाएगा, ठीक है। यानी कि ये क्या हो जाएगा आपके पास, इसे बोल सकते हैं आप लोग न्यूक्लियोफाइल अटैक, ये न्यूक्लियोफिलिक अटैक इसे कह सकते हैं आप। This one is called the nucleophilic attack here. So when this CS2 plus is attacked with the I negative, therefore nucleophile is attacking here, so it will give you CS2, ठीक है। यहाँ पर जो होगा, जो क्लीविंग ऑफ CO बॉन्ड होगा वो काफी स्लो होगा, ठीक है। इसको आप बोल सकते हैं जो क्लीविंग ऑफ CO बॉन्ड है वो काफी स्लो है, बॉन्ड इज स्लो, ठीक है, काफी स्लो है, तो CS3OH बन गया। और ये जो होगा यहाँ पर प्लस I आप इफेक्ट या प्लस I आप ऐड भी कर सकते हैं, ठीक है। इससे रिवर्सिबल रिएक्शन, ठीक है। और ये बन गया क्या, प्रोटोनेटेड बन गया, ठीक है। दिस वन इज कॉल्ड द प्रोटोनेटेड, ठीक है। चलिए, और दिस वन इज फॉर्मिंग द CS2 प्लस CS3OH, so directly here is a nucleophile attack to forming the CS2I. So this is called the cleaving of benzyl alkyl ether. Clear? That means the benzyl alkyl ether is cleaving here, so it will give you this kind of product. This kind of product is having. So this is all about the cleaving of the CO bond, the cleaving of the benzyl alkyl ether, या cleaving of the symmetrical or unsymmetrical ethers here. ठीक है? Symmetrical ethers give the alcohol or alkyl halide. Clear? Unsymmetrical will give you the different kind of product. ठीक है? या unsymmetrical is also give you the alcohol and the alkyl halide. But remember that the OH is attached to that alkyl group which having the lesser number of alkyl group in the ether. ठीक है? After you see that the phenolic ether cleaving, phenolic ether के अंदर बोला कि the product will be totally transferred. ठीक है? Due to having the SN1 reaction. ठीक है, वहां तो SN2 चल रहे थे, यहाँ पे SN1 आ गया, ठीक है। और आफ्टर दैट यू हैव द क्लीविंग ऑफ बेंजाइल एल्काइल ईथर, सो प्रोडक्ट विल टोटली डिफरेंट हियर, द प्रोडक्ट इज CS2I
instead of alcohol and phenol. Clear?